did use. We also change the verb, not only subject. Subject is I, but change the verb. I can. I can make the food. You what, Neha, Didi? sorry, you have to change verb. Verb. Okay. I can. I can doing work. I can do work. So okay, मैं so there you. मैं काम कर सकती हूँ. You can ask me. Rest. They can cook. वे खाना बना सकते So हैं. Didi, we are using I sentence, I subject. In another round, we use the another subject. So सब्जेक्ट आई ही रखना है. please make sentence with I because this round is for Rupal Didi. ओके. आई कैन कुक. मैं खाना बना सकती हूँ. हु इज रेडी? I am ready. I can worship. मैं पूजा कर सकती हूँ. Didi, verb, where is the verb? You want to use the verb. In your sentence, verb is missing. So please come again. Sir, Shivansh is right. Worship is verb. पूजा करना, Okay, शिवांश. worship. I I doesn't can, have worship. I can only. I am here only. I can. okay. Okay, okay. I can make food. मैं खाना बना सकती हूँ. No, your that sentence is good. You can use that sentence. I can play badminton. मैं बैडमिंटन खेल सकती हूँ. Who is Call rest? anybody. Call I am anybody. ready. Yes. I can I hear you can. all. I Okay, can hear Rupal you Didi, all. you. मैं आप सभी को सुन सकती हूँ. रूपल जी. I can run outside. थैंक यू. फर्स्ट टाइम कुछ बनाया है मैंने सेंटेंस. Please Hindi. complete, Rupal ji, in Hindi. अच्छा. आई कैन Oh, बाहर रन इसका. आउटसाइड. मैं बाहर दौड़ सकती हूँ. हु इज रेस्ट? Nobody is नम्रता. rest now. No, नम्र everybody is Subject, done. subject So will be now, same. I. now this round we change the subject. For that round, we are playing according to Rupal Didi because Rupal Didi said, "I am not having any subject. I am confused that how to make sentence." That's why I said one round play with I. So that's Okay, why. so now I am trying with I subject. And no, I. now we are making the sub. We are making sentence plus other subject. We change the subject in this round. First round is done with I. Now change the subject. So should I start or anybody want to start? Should I? I want to start. Can I? Okay, okay. Okay. Uh, Namrata Didi. I can sleep. I can slap you. मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ. Didi, we no, it's want I, to not Amrita. Yes. we want to change the subject. We should change the subject. Can Okay, I try? Deepika Didi. Okay, Okay, you Told okay. make. me. Firstly, Okay, we should use I subject. Did we are change the using subject first. right now. We will use living object right now. Okay, living Shivang, subject. 1 minute. Yes, Shivang, here we go, please. Other subject. I am. Okay. Mr. Narendra Modi ji can go America with. Should I make large with extension? Rupal No, Didi, can you? Shivang. Sure.
Okay, I am making a short. Mr. Narendra Modi ji can go America. मिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जा सकते हैं. दीपिका दीदी. Everyone can dream big. हर कोई बड़ा सपना देख सकता है. नम्रता. Barack Obama can come India by flight. बराक ओबामा भारत आ सकता है फ्लाइट से. निधि. He can speak गुजराती as well. वह गुजराती भी बोल सकता है. रोशनी. You can be a doctor. तुम डॉक्टर बन सकते हो. नेहा. Sorry, come again in Hindi. रोशनी. तुम डॉक्टर बन सकते हो या आप English डॉक्टर. sentence. English sentence. You can be a doctor. तुम डॉक्टर बन सकते हो या आप डॉक्टर बन सकते हो. नेहा. दीदी शिवंग, अगर शिवंग, आप यूज करें. हाँ. शिवंग, is it right? She used अगर फर्स्टली लिसन मी. फर्स्टली सी रोशनी दीदी यूज तुम. तो तुम डॉक्टर बन सकते हो. तो शी इज लाइक सेइंग विथ हर partner, like her friend. Okay, and next sentence she is using up, but in up she is not making the proper respect in last, like आप डॉक्टर बन सकते हैं या फिर हो. she is using हो. so this is not a respect for small, for a little, for a younger or elder. so आप एक डॉक्टर बन सकते हो. Is it? तुम डॉक्टर बन no, सकते एक हो. ये आएगा तुम डॉक्टर बन no सकते हो. एक डॉक्टर नहीं. she is right दीदी. निधि दीदी, she is right. she is not wrong. She is she is using right. right preposition. if It she is will do. not using preposition if she is not using preposition, then she is also right. but Nidhi didi said she is using a doctor, मतलब according to translation एक doctor. okay Nidhi didi. It is Continue. totally Radha Chha. According to you, that was Radha Cha, and according to Roshni Didi, that was Jha sir. Roshni Didi, नेहा. call anyone. नेहा. Government can allow. गवर्नमेंट आज्ञा दे सकते हैं. Yes, Neha Didi, you can Govern- call Government Renuka can Didi. Call Renuka Didi. Renuka Didi is also here. रेणुका जी. Hi. Um, Nobody can let you down with. खींचा Didi, नहीं you are दिखा not सकता है. audible. You are not audible हेलो. in little bit. हेलो. Come again, please, Audible? Didi. Now Now you you are are audible. audible. I'm audible now. Yes. Yeah. No one can you let down without your permission. कोई भी आपके परमिशन के बिना आपको नीचा नहीं दिखा सकता है. Who is Didi, rest? you can Rupal Didi. रूपल. बिफोर दैट सर हैं क्या यहाँ पे? हाँ, सर तो हैं भी, पर सर विश यू वेरी हैप्पी you can बर्थडे. ऐसे विश नहीं होता. सर विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे.
थैंक यू ऐसे थैंक विश यू। नहीं होता दीदी, गाना गाना हाँ, पड़ेगा एक। ये लोग एक एक सॉन्ग गा। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर। इफ यू वांट टू विश हैप्पी बारी मी, बर्थडे बारी यू सर। हैव दिल टू ये सिंग ए सॉन्ग। आए, हाँ, बारी बारी दिल ये गाए, तुम जियो हजारों जो साल, ये हजारों साथ मेरी मेरी है आरज़ू। है हैप्पी आरज़ू। बर्थडे हैप्पी टू यू, बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे यू, सर। हैप्पी बर्थडे टू यू सर, हैप्पी नम्रता, आप बर्थडे। बहती गंगा में हाथ धो रही हो। ओके, सम टाइम इट्स इन वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। दोस्तों अपन नम्रता आप तुरंत आगे सब बढ़ते साथ हैं। में भी गा सकते थे निधि, आई थिंक अब अपन आगे बढ़ते हैं दिस इज अ अपने वर्चुअल क्लासेस में। प्लेटफॉर्म। अगर फिजिकल क्लास होती तो जरूर अपन इसको पूरा उसी तरह एंजॉय करते, लेकिन अब हमें तेजी से आगे बढ़ते हुए, हमने कल आपको इन्वर्टेड क्वेश्चनिंग सिखा दी है, तो चलिए हम अभी, आपने प्रश्न उत्तर किया क्या? नहीं। सर वी आर प्लेइंग सेम क्वेश्चन, मतलब सेम सेंटेंस विथ यू कैन गो, इट इज अ सेंटेंस, वी प्ले वन राउंड। चलिए, तो कल हमने कैन यू गो क्वेश्चन एक दूसरे से कर लिया था दोस्तों। आज हम सब लोग वर्ब बदलेंगे, सब्जेक्ट नहीं। और मैं पहला सवाल शिवांग से कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि शिवांग उसका उत्तर दे सकता है इसलिए। और शिवांग, आप जिससे पूछें उसके हिसाब से सेंटेंस बनाना। अगर आप नम्रता दीदी से पूछें तो अपने मन का बड़ा सा सेंटेंस आप बना सकते हैं। शिवांग, कैन यू रीच द टॉप ऑफ द हिमालय? यस सर, आई कैन रीच द टॉप ऑफ द हिमालय। शिवांग, क्या आप हिमालय की चोटी पर पहुंच सकते हैं? हाँ सर, मैं हिमालय की चोटी पर पहुंच सकता हूँ। अमृता दीदी, कैन यू हैव अ पिज्जा विथ बर्गर? कम अगेन शिवांग। कैन यू हैव पिज्जा विथ बर्गर? यस शिवांग, आई कैन हैव अ पिज्जा विथ बर्गर। दीदी, क्या आप पिज्जा के साथ बर्गर खा सकती हैं? बर्गर के हाँ साथ शिवांग, पिज्जा खा सकती हैं? मैं बर्गर के साथ पिज्जा खा सकती हूँ। निधि, कैन यू स्पीक जर्मन लैंग्वेज? कम अगेन नम्रता। कैन यू स्पीक जर्मन लैंग्वेज? यस, आई कैन स्पीक जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, आप जर्मन लैंग्वेज बोल सकती हैं। हाँ नम्रता, मैं जर्मन लैंग्वेज बोल सकती हूँ। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। आई एम अवेक शिवांग। रोशनी, कैन यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक? कम अगेन निधि दीदी। निधि, आप ये सवाल रेणुका जी से पूछिए। रेणुका जी, कैन यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स? दीपिका, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. Didi, actually voice was shopping. Deepika, please answer. She is having a network problem. You can answer, Deepika. Nidhi, please come again. No, Nidhi will not come again. She repeated twice. Can you answer? Yes, I can rectify my mistake. Good. दीपिका, क्या आप अपनी गलती सुधार सकती हैं? हाँ निधि, मैं मेरी गलती सुधार सकती हूँ।
दीपिका, रोशनी से पूछिए आप। ओके, रोशनी, कैन यू अंडरस्टैंड what I told you, what I tell you? I can understand. Sorry, come again, please. मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ। Yes, I can understand, Deepika, what you told me. सर, क्या आप वो समझ सकते हैं जो मैंने आपसे कहा? हाँ दीपिका, जो आपने मुझसे कहा मैं समझ सकता हूँ। रोशनी, कैन यू मेक वन मोर रोटी? Yes, I can make one more roti. रोशनी, क्या आप एक रोटी और बना सकती हैं? हाँ, मैं एक रोटी और बना सकती हूँ। आप नेहा, पूछिए नेहा जी से। नेहा, can you swim? Come again, Rosni di. Neha, can you swim? Yes, I can swim. Come again, Neha. Yes, I can swim. Swim, swim. SWIM. उसने सही बोला है रोशनी। अगर लिखा Swim. हुआ गलत आया है तो उससे चिंता मत करो, सही बोला उसने। शी इज राइट। नेहा, क्या आप तैर सकती हैं? Come again, Rosni di. नेहा, क्या आप तैर सकती हैं? Come again, Rosni di. क्या आप तैर सकती हैं? Sorry, network problem सुनाई नहीं पड़ रहा है। निशा, Yes, आप हाँ इसका मैं तैर उत्तर दे सकती हूँ। सकते हैं? हाँ Yes. सही, बस रुक जाओ। निशा दी, ओके सर। Sir, can I make? Nisha di, can you cook food? Cooking food. Sorry, can you make food? Nisha di, You can got you? 3D. नेहा बेटा, तीन निशा का दी, दंड दो पहले। 3 का दंड दो। मेक क्रिया मैंने प्रयोग की। sorry sir. Here you are लीजिए। सॉफ्ट पेशेंट, कीप पेशेंस, धीरज रखिए। सॉफ्ट सॉफ्ट फायर मेक्स अ स्वीट माल्ट, धीरज का फल मीठा होता है। सर कैन आई मेक सेंटेंस सर? नेहा, अगर तुम्हें हमारी आवाज में कोई चॉपिंग नहीं है तो ध्यान से सुनो। तुमने जो कुक वर्ब ली थी उसमें बिना कोई ऑब्जेक्ट लगाए उस सेंटेंस को पूछो निशा जी से। तो मेक बोलना था, कुक निकल गया। निशा जी, नेहा की जगह मैं पूछता हूँ, कैन यू कुक? Sir, voice is chopping. Sorry, sir. Please come again. रेणुका जी, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज? हेलो। ओके, यस आई कैन कुक। थैंक यू। क्या आप यस आई कैन कुक। क्या आप भोजन पका सकती हैं? यस आई कैन कुक फूड। मैं खाना बना सकती हूँ। दोस्तों, आपने एक बहुत अच्छी चीज अगर नहीं नोटिस की है तो ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर आप अपने माइक को बंद रखेंगे तो हमारी आवाज पूरी साफ साफ आप तक पहुंचेगी।
अगर चलिए मैं आपको सबसे पहले लिखवा देता हूँ और इस अंतर को आप समझिएगा। Sir, you are mute. दीपिका पहला सवाल करो किसी से। शिवांग, what should be the verb for खाना पकाना? Didi, the verb for खाना पकाना should be cook. शिवांग, खाना पकाने के लिए वर्ब क्या होगी? दीदी, खाना पकाने के लिए वर्ब कुक होगी। नम्रता दीदी, what should be? बेटा रुको, पहले तुम 3 का दंड दो, फिर दीपिका दीदी देंगी। हिंदी दोनों ने गलत बोला है और दीपिका So दीदी there ने you बोला are. तो उनकी कम गलती है क्योंकि तुम्हें तो ज्यादा अभ्यास है। 3 का दंड दे दो बेटा। Here you फर्स्ट are. ये लीजिए। So there you are. अब आना तुम लाइन पर। वर्क इज बाइसेप, कर्म ही पूजा है। दीपिका दीदी। देयर विल बी नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई विल बी अ गुड ह्यूमन, मैं एक अच्छी इंसान बनूंगी। वॉट विल यू बी इन फ्यूचर, तुम भविष्य में क्या करोगी? दीपिका ये तुमने बहुत अच्छा किया। जिसके पास ज्यादा इन्फेक्टिव इडियम नहीं लिखे हैं, अगर उसको 10 का दंड लगता है या 5 का, तो वो इन सेंटेंसेस का भी प्रयोग कर सकता है। बड़े खूबसूरत वाक्य हैं। दीपिका प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। शिवांग, वॉट शुड बी द वर्ब फॉर खाना पकाना? दीदी, द वर्ब फॉर खाना पकाना शुड बी मेक। ओके, अब आप ये ओके रुक जाइए। नम्रता, आप इसका उत्तर दे दीजिए। The verb for खाना पकाना should be make a food, make a meal निधि आप or उत्तर दे cook. दीजिए। थैंक यू नम्रता, म्यूट कर लीजिए। निधि उत्तर देंगी। The verb for खाना पकाना should be cooked. अब आगे का क्वेश्चन निधि तुम कर लो। Okay. Namrata, what should be the second form of cook? Nidhi, the second form of cook should be cooked. नम्रता, कुक के लिए सेकेंड फॉर्म क्या होना चाहिए? निधि, कुक के लिए सेकंड फॉर्म कुक्ड होनी चाहिए। रेणुका जी, व्हाट शुड बी द थर्ड फॉर्म फॉर कुक, थर्ड फॉर्म ऑफ कुक? रेणुका जी इज नॉट प्रेजेंट। नेहा, कैन यू आंसर? रोशनी, कैन यू? व्हाट शुड बी The sir, I'm here, sir. हेलो हाँ रोशनी बोलो बेटा। हेलो सर, आवाज आ रही है? रोशनी बोलिए। हेलो नम्रता दीदी, कम अगेन। नहीं, कम अगेन नहीं होगा। नेहा, द वर्ब सर, फॉर मैं आई? खाना बनाना should be हेलो The verb for third form खाना पकाना should be cooked. रोशनी आप जवाब दें।
द वर्ब फॉर खाना पकाना शुड बी कुक्ड। निशा आप जवाब दें। सर मैं आई निशा सर निशा मैं आई सर। हेलो निशा 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 The verb for should be खाना पकाना। सॉरी सॉरी निशा। दीपिका हेलो आप जवाब दीजिए। हेलो द रेनू वर्ब फॉर की पेशेंस प्लीज, म्यूट योरसेल्फ सर प्लीज। दीपिका आंसर दीजिए। रेणुका की पेशेंस, म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। ओके सर। दीपिका आंसर प्लीज। द थर्ड फॉर्म ऑफ खाना पकाना शुड बी कुक्ड। वेरी नाइस। मैंने पहले ही पूरा लिख दिया है। दोस्तों, इस क्रिया में खाना और पकाना दोनों शब्द मौजूद हैं, इसलिए इसमें ना अलग से आपको फूड जैसे प्राचीन शब्द को जोड़ने की जरूरत है और ना कोई ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता है। ये अपने आप में संपूर्ण क्रिया है। दिस इज अ कंप्लीट वर्ब फॉर खाना प्लस पकाना। इसमें खाना शब्द मौजूद है, अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं। और इसको क्लियर करने के लिए मैं एक पूरा राउंड चला रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा एक निवेदन है। जिनको नेटवर्क की अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो मैं उनसे पास कर दिया करूँगा, वो बाद में आके बीच में मत बोलिएगा प्लीज। जैसे अभी थोड़ा देर पहले नेहा के साथ हुआ, रोशनी के साथ हुआ और रेणुका जी के साथ हुआ, क्योंकि उस समय प्रश्न किसी और तक पहुंच चुका है, उससे बोलने दीजिए। और सबसे अगर एक चीज और टेक्निकल जान लीजिए, अभी आप सब मेरे को देख रहे हैं, मेरे राइट साइड में एक साइन बकायदा इस तरह से ब्लिंक हो रहा है, जिसका तात्पर्य है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये कंफर्म है। और अगर नहीं पहुंचती होती तो कोई ना कोई बोलता सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, या सर योर वॉइस इज चॉपिंग, जरूर कोई ना कोई बोलता। जैसे कुछ सेकंड पहले मैं म्यूट था और बोलने लगा तो फट से कोई ना कोई बता देता है सर यू आर म्यूट। तो जब आप ज्वाइन करें तो बहुत टेक्निकल टेंशन ना लें, और जब हम किसी और का नाम पुकार लें तो आप बीच में ना बोलें, नहीं तो 3 माइक एक साथ ऑन होते हैं तो फिर किसी को समझ में नहीं आता है। अब हम 2 प्रश्न कर रहे हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। आई एम स्टार्टिंग विद दीपिका। दीपिका, कैन यू कुक? यस सर, आई कैन कुक। क्या आप खाना पका सकती हैं? जी सर, मैं खाना पका सकती हूँ। What can you cook? अब ये मन से उत्तर देना होगा। आई कैन कुक मिक्स वेज। वेरी नाइस, बिल्कुल सही उत्तर है। और अब उत्तर रिपीट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस क्लास में हर व्यक्ति को एक नया उत्तर देना है। अब हमारा हिंदी सुन लीजिए। आप क्या पका सकती हैं? मैं मिक्स वेज पका सकती हूँ। बना सकती हूँ, बोल सकती हूँ तुम। नम्रता, व्हाट कैन यू कुक? नहीं बेटा, 2 सवाल करना है, पहले इन्वर्टेड क्वेश्चन फिर उसमें व्हाट। नम्रता, कैन यू कुक? यस दीपिका, आई कैन कुक। नम्रता, आप खाना पका सकती हैं? सॉरी क्या आप खाना पका सकती हैं? ये जो बच्चे तुम लोगों को क्या लगाने की बिल्कुल आदत नहीं है ना, इसको भी हम सुधरवाएंगे। दीपिका हिंदी। क्या आप खाना पका सकती हैं? हाँ दीपिका, मैं खाना पका सकती हूँ। What can you cook? I can cook Maggi only. आप क्या पका सकती हैं? मैं केवल मैगी बना सकती हूँ। निधि, कैन यू कुक? नम्रता, आप हमसे पूछ लीजिए, मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल उत्तर देने के लिए बीच में आ रहा हूँ, पूछिए।
सर कैन यू कुक? यस आई कैन कुक। सर क्या आप खाना पका सकते हैं? हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। सर व्हाट कैन यू कुक? आई कैन कुक चने की भाजी एंड बाजरे की रोटी। सर आप क्या पका सकते हैं? मैं चने की भाजी और बाजरे की रोटी बना सकता हूँ। निधि कैन यू कुक? Yes, of course, I can cook. निधि क्या आप भोजन बना सकती हैं? हाँ सर, बिल्कुल मैं खाना बना सकती हूँ। निधि व्हाट कैन यू कुक? Sir, I can cook South Indian recipes. आप क्या पका सकती हैं? सर मैं साउथ इंडियन रेसिपी बना सकती हूँ। शिवा, कैन यू कुक? Yes, रोशनी, Didi, I can cook. My mic is not open. शिवांग, क्या आप खाना पका सकते हैं? हाँ दीदी, मैं खाना पका सकता हूँ। What can you cook, शिवांग? दीदी, I can cook only लजीज पोहा। शिवांग, आप क्या बना सकते हैं? मैं सिर्फ लजीज पोहा बना सकता हूँ दीदी। रेणुका दीदी, कैन यू कुक? रोशनी दीदी, कैन यू कुक? यस आई कैन कुक। दीदी, क्या आप खाना पका सकती हैं? हाँ मैं खाना पका सकती हूँ। दीदी, व्हाट कैन यू कुक? आई कैन यू सॉरी आई कैन कुक। रोशनी तुम क्या कर रही हो? डोसा आई एंड कैन कुक सांभर। यू। मैं तुम्हें पका सकती हूँ। सॉरी नॉन सर। वेजिटेरियन हो क्या? आर यू नॉन वेजिटेरियन? नो सर, वेजिटेरियन। शिवांग, आई कैन कुक डोसा एंड सांभर। दीदी, आप क्या बना सकती हैं? मैं डोसा डोसा एंड सांभर बना सकती हूँ। नेहा, यू कैन यू कुक? Yes, I can cook. नेहा तुम क्या पका सकती हो? Sorry. यस, सॉरी, क्या बना सकती हो? सॉरी, क्या बना सकती हो? Sorry. सॉरी रोशनी। सॉरी रोशनी। बताइए मैंने कौन सा मुहावरा बोला? गई भैंस पानी में। वाह हाय यार, नमो नमः। 7.25 करोड़ मिलते हैं तुम्हें। खाना, नेहा क्या खाना पका सकती हो? सर आई डोंट नो हिंदी। हाँ संडे को हम हिंदी की क्लास लेते हैं बेटा, लेकिन उसकी फीस 3,000 रुपए है। डबल इसलिए है क्योंकि हिंदी डबल लेटर की भाषा है। इंग्लिश 26 की है, ये 52 की है, इसलिए फीस ज्यादा है। संडे टू संडे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर कम अगेन, सर मैं बोलूं? हाँ जी। नेहा तुम खाना बना सकती हो? सॉरी, वो तो बना ही सकती हैं सॉरी, दीदी। पर पूछो तो कैसे बना सकते हैं? खाना पका सकती हो? सर नहीं आ रहा इसका। वैसे एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि रोशनी से जिसने भी पूछा था, उसने पहले रेणुका जी को पुकारा था, तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब तो राउंड रोशनी पर आके अटका है। अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे दोस्तों। बाकी लोगों को लगेगा कि सर चेंज कर दीजिए, टाइम सेव हो जाएगा। नहीं, इसके पीछे का उद्देश्य सुन लीजिए। अगर आज भले ही
पूरा समय नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए, लेकिन उससे दो फायदे होंगे। एक तो रोशनी और एकाग्र हो जाएगी और बाकी लोग भी एकाग्र हो जाएंगे कि अगर उनकी गाड़ी भी इसी तरह अटकेगी तो बाकी सब लोगों का समय नष्ट होगा। इसलिए मैं इस राउंड को यहाँ से आगे नहीं बढ़ाऊंगा। रोशनी जितना भी समय लेना चाहे वो ले ले। और बात जो कि हमारी मातृभाषा की है दोस्तों, तो मातृभाषा के लिए समझौता नहीं कर सकते। थैंक यू निधि। और चूंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, पहले मैंने दीपिका से पूछा, फिर दीपिका ने नम्रता से 2 बार हो गया, फिर नम्रता ने शिवांग से 3 बार, फिर निधि से 4 बार, 5वीं बार पहुंचा है रोशनी के पास और उससे हो रही है हिंदी में गलती। एक इंटरेक्टिव सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, फिलहाल यू जस्ट राइट इट डाउन, आई विल गिव यू हिंदी लेटर। Friends, do not take Hindi to be granted. Do not take Hindi to be granted. निधि, तुम्हें भी ये इडियम नहीं मिला होगा बेटा, शिवांग को भी नहीं मिला होगा। अब मैं हिंदी बोल देता हूँ, उसी के नीचे लिख लीजिए, लेकिन इसके साथ का कोई इडियम मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये अचानक जुबान पे आया, बाद में दे दूंगा अगर मिल गया तो। हिंदी को हल्के में ना लें, और जो सबसे पहले लिख ले वो अनम्यूट करके पहले इंग्लिश बोले फिर हिंदी बोले। डू नॉट टेक हिंदी टू बी ग्रांटेड। हिंदी को हल्के में ना लें। Who is Do ready not now? take Hindi to be granted. हिंदी को हल्के में ना लो भाई। Do not take Hindi to be granted. हिंदी को हल्के में ना लीजिए। नम्रता जी आप बोलिए। Friends, do not take Hindi to be granted. दोस्तों, हिंदी को हल्के में ना लें। निशा जी आप बोलिए। निशा जी नहीं बोल रही। नेहा जी आप बोलिए। Do not take Hindi to be granted. फ्रेंड्स, हिंदी को हल्के में मत लीजिए। रोशनी जी आप बोलिए। Do not take Hindi to be granted. हिंदी को हल्के में ना लें। रेणुका जी आप बोलिए। रेणुका जी नहीं है। एक बार मैं निशा जी को आवाज देता हूँ। निशा जी। रूपल जी आप अगर सुन रहे हैं तो आप बोलिए, आप भी स्क्रीन के पीछे अगर हैं तो। डू नॉट टेक हिंदी टू बी ग्रांटेड। हिंदी को हल्के में ना ले। Do not take Hindi to be granted. हिंदी को हल्के में ना लें। अब इसमें हम थोड़ा सा एक परिवर्तन कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक सेंटेंस हम नया बोल रहे हैं, फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे जिस क्रम में अभी बढ़े थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रेणुका जी को आवाज देना चाहता हूं। अगर वो कनेक्टेड है, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो कृपया वाक्य बोलें। चलिए, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अगला सेंटेंस भी आपको सेम टू सेम बोलना है, ये बहुत यूजफुल है। फिर मैं आपसे कुछ चीजें बाद में बदलवाऊंगा, जो बदल सके वो बदलेंगे, सबके लिए आवश्यक नहीं होगा। लेकिन अगला सेंटेंस सब एक सा ही बोलेंगे और मेरे बाद दीपिका जी बोलेंगे, इसलिए वो तैयार रहें। डू नॉट टेक मी ग्रांटेड। मैनू हल्के में ना ले।
डू नॉट टेक मी ग्रांटेड, मुझे हल्के में ना लीजिए। वेरी गुड। Do नाम not लेते take जाना। Do not take me granted. ये मेरे को हल्के में ना ले। दीदी डू नॉट टेक मी ग्रांटेड, मुझे हल्के में ना लीजिए। रोशनी। डू नॉट टेक मी ग्रांटेड, मुझे हल्के में ना लें। डू नॉट टेक मी ग्रांटेड, मुझे हल्के में ना लें। नेहा। डू नॉट टेक मी ग्रांटेड, मुझे हल्के में मत लीजिए। निशा दी। डू नॉट टेक मी ग्रांटेड, मुझे हल्के में ना ले। रूपल जी। डू नॉट टेक मी ग्रांटेड, मुझे हल्के में ना ले। रेणुका जी। इज एनीबडी रेस्ट? नोबडी इज रेस्ट। अब क्रिएटिविटी राउंड है। इसमें जिसके जहन में कुछ मी की जगह कुछ अच्छा आ जाए वो सबसे पहले अनम्यूट करे और अपना सेंटेंस बहुत आराम से बोले। Second I. यस शिवांग। Do not take मोदी जी granted. भाई मोदी जी को हल्के में ना लो। करेक्ट। डू नॉट टेक शिवांग ग्रांटेड, शिवांग को हल्के में ना लेना। बोलो नेहा। नेहा। डू नॉट टेक निशा दी ग्रांटेड, निशा दी को हल्के में मत लीजिएगा। हु इज रेडी? आई एम रेडी। निशा जी डू नॉट बोलिए। टेक निधि ग्रांटेड, निधि को हल्के में नहीं लेना। सॉरी। Sir, can I make one more sentence? बेटा पहले दो लोगों को और आई बोल एम लेना। रेडी मीन्स आई एम रेस्ट। Whenever I go with my juniors to anywhere, they understand I am just like them, and when they know who I am, then I say to say to them, do not take me granted. Do not take me granted. जब भी मैं कभी जूनियर्स के बीच में जाती हूँ वो मुझे ऐसा समझते हैं कि मैं उनके साथ में की ही हूँ, और फिर जब उन्हें पता चलता है तब मैं कहती हूँ कि मुझे हल्के में ना लें। दोस्तों एक गलती हो गई मुझसे और मुझे समय पे याद आ गया, नहीं तो मैं बाद में व्हाट्सएप में वो गलती सुधारता। आपने जहाँ पे भी ये सेंटेंस लिखा है उसको देखिए, मैं सुधार के बोल रहा हूँ। डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, FOR लगा लीजिए। और हम एक लाइन से बुलवा दे रहे हैं। मैं दीपिका का नाम पुकारूंगा, फिर दीपिका जिसका भी नाम पुकारेगी। दीपिका। सर कैन आई गो? यस प्लीज। इमरजेंसी। बेटा बिना पूछे भी जा सकते हैं, जिसको जब जाना हो जा सकते। डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मुझे हल्के में ना लीजिए। नम्रता। डू नॉट टेक मी फॉर अ ग्रांटेड, मुझे हल्के में मत लीजिए। ए नहीं लगाना। डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मुझे हल्के में मत लीजिए। निधि। और जहां आपने लीजिए लिखा है उसके ऑब्लिक में लेना शब्द भी जोड़ सकते हैं, जो फ्यूचर का संकेत देता है। मुझे हल्के में मत लेना, समझे ये भाव। डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मुझे हल्के में ना लेना। शिवा। Do not take me for granted. भाई मुझे हल्के में मत लेना। रोशनी दीदी।
रूपल जी आप बोल दीजिए, रोशनी डिस्कनेक्ट है। डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मुझे हल्के में ना ले। सर निशा मैंने जी एक आप सेंट बोलिए। डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मुझे हल्के में ना लीजिए। निशा एक बार पूछ लो, हु इज रेस्ट। हु इज रेस्ट? ओके, नोबडी इज रेस्ट। अब आपको हर जगह फॉर लगाना पड़ेगा। आप कुछ बदलना चाहते हैं तो बदलिए। I'm ready for a new sentence. दीपिका। Do not take street's dog for granted. स्ट्रीट्स डॉग को हल्के में ना लें। Who is सर ready? I am मैंने भी ready. एक Okay, Rupal didi, after you. रूपल जी उसने बोला पहले आप। ओके सर मैंने भी एक नया सेंटेंस बनाई हूँ। डू नॉट टेक फॉर माय फादर्स गारंटेड। नहीं, आपने गलत जगह शब्द रख दिया। आप पहले उस सेंटेंस को देखिए और जहां मी रखा है उसकी जगह माय फादर रखें। मे डू आपने नॉट, सेंटेंस लिखा है कि नहीं? यस सर, डू तो नॉट मी की टेक, जगह हाँ, डू नॉट टेक फॉर माय फादर गारंटेड। नहीं, आप एक दो सेंटेंस और सुनिए। ओके Sir, may I try one more another? नम्रता। Do not take Oppo phone for a granted. Oppo फोन को बेटा तुम हल्के पे मत लें। एक को काउंट करो, ये जुबान पे लगा हुआ है। ये जो अपने आप से पता नहीं क्यों निकल जा रहा है। हमें पता Do है ना, not take, ये राधा ने सिखाया है। do not take Oppo कंपनी फोन for granted. Oppo कंपनी के फोन को हल्के पे ना लें। शिवांग। Do not take Avengers for granted. Avengers को हल्के में मत लो। निधि। Pok, do not take Indian Army for granted. Pok, Indian Army को हल्के में मत लेना। रूपल जी। सर मैंने कोई सेंटेंस ही नहीं बनाई। कोई बात नहीं, और सुन लीजिए। निशा जी। डू नॉट टेक रानी दुर्गावती ग्रांटेड, रानी दुर्गावती को हल्के में ना ले। बेटा जो सुधार हमने करवाया वो तुमने किया ही नहीं, और इन लोगों को भी तुमने नहीं सुना। और सुनो ना। हु इज रेडी? I'm ready, sir. I am ready. दीपिका के बाद रोशनी। Do not take our judiciary for granted. हमारी न्यायपालिका को हल्के में ना लीजिए। Do not take him for granted. उसको हल्के में ना लें। बहुत बढ़िया, सबसे प्रैक्टिकल सेंटेंस। बढ़िया, गुड। नेहा अपन ready? सीधे नाम नहीं पुकारेंगे इसमें, क्योंकि इसमें एकदम से कोई तैयार नहीं रहता। हु इज रेडी पूछो। Who is ready? I'm ready. Do not take this class for granted. इस क्लास को हल्के में नहीं लेना। थैंक यू। निशा तुमने सुधार लिया होगा, मुझे उम्मीद है। ओके सर। डू नॉट टेक वर्शिप फॉर ग्रांटेड, पूजा को हल्के में नहीं लेना। बेटा योर वॉइस वाज चॉपिंग, बर्थडे लिखा हुआ आया इसमें। कम अगेन। डू नॉट टेक वर्शिप फॉर गारंटेड, मुझे पूजा को हल्के में ना लें। ओके,
Sir, I am ready. प्लीज। Do not take गन्नू साहब for granted. गणेश जी को हल्के मत लेना। जय गणेश। Sir, I am ready. Sir, I am ready. नम्रता के बाद रोशनी। Do not take Indian authors for granted. भारतीय लेखक को हल्के में ना लें। रोशनी। Do not take my brother for granted. मेरे भाई को हल्के में ना लें। रूपल जी, आपने इस सेंटेंस को सुना होगा और अब आप भी चाहे तो बना सकते हैं। Do not May I? take father. Do not take father for granted. मेरे फादर को आप पिताजी को हल्के में ना लें। आपने मेरे पिताजी बोला कि क्या बोला आखिरी में? फादर हाँ? पिताजी। नहीं, हिंदी में क्या बोला आपने? डू नॉट टेक। हिंदी में पिताजी को हल्के में ना ले। कुछ अधूरा सा लग रहा है आपको? मुझे सर लग रहा है। पिताजी किसके हैं इसका उल्लेख करना जरूरी है इसमें। आप सर किसके मैंने माई पिताजी? लगाई थी पहले, जब इंग्लिश में लिखी तो माई लगाई, तो माई रॉन्ग हो रहा है, तो फिर हिंदी में नहीं, माई कैसे लगा? आपसे ये किसने कहा कि माय रॉन्ग हो रहा है? ये किसने कहा? किसी ने नहीं तो कहा। मुझे लगा है तो। हाँ, तो आपने अपना निर्णय ले लिया, जबकि माय के बिना तो वो अधूरा सा लग रहा है। डू नॉट टेक माई फादर फॉर गारंटेड। हाँ। मेरे पिताजी को हल्के में ना ले। बल्कि ये सेंटेंस हम ऐसे बोलेंगे, आप देखिएगा ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। बेटा, डू नॉट टेक योर फादर फॉर ग्रांटेड, आफ्टर ऑल ही इज योर बाप। बेटा, अपने पिताजी को हल्के में ना लो, वो तुम्हारे बाप हैं। नेहा। Do not take Indian women for granted. इंडियन वुमेन को हल्के में मत लीजिए। नेहा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अभी तुम्हारा जो रिसेप्शन है एकदम क्लियर है बेटा। तुम्हारा नेटवर्क यानी जो तुम्हारा चित्र है वो बताता है कि तुम्हारा नेटवर्क वीक है कि स्ट्रांग है। तो अब तुम इसको तय कर लो कि जिस जगह अभी बैठी हो और जो भी तुमने डायरेक्शन मोबाइल का रखा है या जो कुछ भी सेटिंग है, वो बहुत अच्छी सेटिंग है। आवाज भी बिल्कुल साफ है, तुम्हारा चित्र भी बहुत अच्छा लग रहा है और तुम भी अच्छी लग रही हो। सबसे बड़ी बात, यू आर लुकिंग गुड। तो कुछ लोग धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं, वो दो कारण से होते हैं। जैसे निधि का अगर देखें तो निधि का बैक लाइट जो है वो उसके चेहरे पे, लाइट उसके चेहरे पे नहीं आ रहा, वो पीछे से आ रही है। रूपल जी का जो डायरेक्शन है वो भी ऐसा है कि चेहरे पे लाइट नहीं आ रही। नम्रता बिल्कुल सही है, उसने अपने बैकग्राउंड में खूबसूरत से कर्टन को बैकग्राउंड के रूप में रखा है, बिल्कुल सही प्रोफाइल है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप देख के सीख सकते हैं। नाउ हु इज रेडी? Sir, I am ready. I am ready. यस निशा। Okay, after Nisha. Do not take my daughter for granted. मेरी बेटियों को हल्के में ना ले। बेटा, Sorry, तुमने did you इंग्लिश come में, again? हाँ बेटा, तुमने बहुवचन नहीं बोला। मेरी बेटी को हल्के में ना ले। एक है कि दो है? सर दोनों तो दो है ना बेटा। इंग्लिश में बहुवचन बनाना तो बहुत आसान है बच्चों। अपन एक छोटा सा कौन सा शब्द लगा देते हैं जिससे, बताओ डॉटर। रोशनी। Daughter, हमारे नाम का पहला। एस लगा तो बस बहुवचन हो जाएगा। जी सर, डॉटर। सॉरी।
ओके सर, डू नॉट टेक माई डॉटर्स फॉर ग्रांटेड। मेरी बेटियों को हल्के में ना लें। कितना आसान है। ओके सर। शिवांग, शिवांग ने पहले लगाया था बेटा, उसको बोल लेने दो। डू नॉट टेक रेंज रोवर फॉर ग्रांटेड। रेंज रोवर को हल्के में मत लो। लैंड रोवर की बात कर रहे हैं। रेंज रोवर इट्स अ ओके, कार। रेंज रोवर, यस, What does it थैंक यू। meaning? Range Rover. इट्स अ From कंपनी ऑफ कार। company of car. Okay. Range Rover is very costly car. It's a company or model, I don't know, but it is very costly. 50 lakhs, 1 crore, 2 crores. Deepika, your turn. डू नॉट टेक योर एनिमीज फॉर ग्रांटेड। अपने Yes. दुश्मनों को हल्के में ना ले। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। डू नॉट टेक योर एनिमीज फॉर ग्रांटेड। अपने दुश्मनों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए भाई। नेक्स्ट, Sir, I रोशनी। am ready. Do not take COVID-19 for granted. COVID-19 को हल्के में ना लें। वेरी नाइस सेंटेंस बेटा। रोशनी, तुम ऐसे रेगुलर रहो, तुमसे अच्छे सेंटेंस बनने लगेंगे। Okay, sir. Who is ready? Sir, I am ready. Okay, Namrata Didi, after you. नम्रता जी। Do not take crime for granted. क्राइम को हल्के में ना लें। Do not take Indian hackers for granted. इंडियन हैकर्स को हल्के में मत लो। जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बता देता हूँ। जो घर में घुस के चोरी करते हैं वो आम चोर कहलाते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर में घुस के चोरी करते हैं वो हैकर्स कहलाते हैं। Who is rest? Who is ready? Sir, I am ready. Okay, Namrata. Do not take 19th century singers for granted. 19th century के सिंगर्स को हल्के में ना लें। Very nice. Who is ready? यहाँ पे इसको विराम दें दोस्तों, आज की क्लास को। आज तो दीपिका बड़ी जल्दी मान गई। खाना बनाना होगा, जिम्मेदारियां रहे। चलिए। सर, आज नहीं आपका सर, दिन काम है। का नहीं होना है। Okay. Thank you for joining. God bless you. थैंक यू सर एंड हैप्पी बर्थडे अगेन। God bless you. थैंक यू सर। Happy हैप्पी birthday, बर्थडे। sir. Happy returns of the हैप्पी day, बर्थडे सर। sir. बाय गाइस।